हेलो। पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर ऑन इक्वालिटीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी ये टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द कास्ट वी आर born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. Om Prakash Valmiki and the Ansaris are being treated unequally on the basis of difference of caste and religion. When persons are treated unequally, their dignity is violated. Dignity का क्या मतलब होता है? एक dignity यानी कि हम कह सकते हैं ऑनर या फिर उनकी रिस्पेक्ट, उनकी वायलेशन होती है। मतलब लोग को रिस्पेक्ट नहीं मिलती जब उनको, जैसे कि हमने पढ़ा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो स्कूल जाता था तो टीचर्स कहते थे कि झाड़ू मारो या फिर लास्ट में बैठो या फिर जो हम पानी पी रहे हैं वो वाला पानी मत पियो। तो इससे क्या है, उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है या जो उसका ऑनर है उसको वो प्रॉपर नहीं मिल रहा, वो उसकी डिग्निटी जो है उसकी वायलेशन हो रही है। The dignity of both Om Prakash Valmiki and the Ansaris were violated because of the way in which they were treated. By picking on him and making him sweep the school because of his caste, while Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as he was less than equal to all other students in the school. Being a child, Om Prakash Valmiki could do very little about the situation that he was in. It was his father who, on seeing his son sweep, felt angry by this unequal treatment and confronted the teachers. The Ansari's dignity was also hurt when person refused to leave their apartment, refused to lease their apartment to them. However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse this suggestion. ठीक है, dignity, self-respect. Om Prakash and the Ansaris do not deserve to be treated like this. They deserve the same respect and dignity as everyone else. इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। उससे पहले हम यहाँ पे ये पिक्चर्स देखते हैं। तो पहली बात तो ये पिक्चर में अगर हम देख रहे हैं तो ये पॉलिश के लिए ये आए हैं ये लोग और ये पॉलिश लगा रहे हैं। पहली बात तो अगर कभी भी पॉलिश लगाना हो ऐसे नहीं करना चाहिए, अपने शूज़ उतार के देने चाहिए। बट फिर भी तो ये क्या है कि मूवी का है। इन द 1975 फिल्म दीवार, अ बॉय हु वर्क्स एज अ शू शाइन refuses to pick up a coin thrown at him. He feels that there is dignity in the work that he does and insists that his fee be given respectfully. तो कॉइन जो फेंक के मारे थे उसकी तरफ वो उसने उठाई नहीं, उसने बोला कि मेरी भी कोई डिग्निटी है, जो भी मैं काम करता हूँ उसमें डिग्निटी है, तो कॉइन हाथ में दो मुझको, जो भी पैसे हैं वो हाथ में दो। Equality in Indian democracy. The Indian constitution recognizes each person as equal. This means that every individual in the country, including male and female persons from all caste, religion, tribe, educational and economic background, are recognized as equal. This is not to say that inequality ceases to exist. It doesn't, but at least in democratic India, the principle of equality of all persons is recognized. While earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are several that works to see that people are treated with dignity as equals. This recognition of equality includes some of the following provision in the constitution. First, that every person is equal before law. यानी कि लॉ के सामने हर कोई जो है वो इक्वल है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उसका जेंडर क्या हो, कास्ट क्या हो, रिलीजन क्या हो, बैकग्राउंड क्या है, लॉ के सामने सब लोग बराबर हैं। ठीक है, भले ही हम लोग भेदभाव कर लें, भले ही लोग भेदभाव कर लें, लेकिन जो लॉ है वो भेदभाव नहीं करेगा, वो सबको इक्वली ट्रीट करेगा। What this means is that every person from the president of the country to a domestic worker has to obey the same laws. ठीक है, ये भी मतलब है कि जो लॉज हम पे लागू हो रहे हैं सेम लॉज औरों पे भी लागू हो रहे हैं। इसका मतलब अगर हम पे लॉ है कि ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट पे रुकना है तो हम पे, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही पे लागू है। अगर प्रेसिडेंट की भी गाड़ी जाती है उसको भी रुकना पड़ेगा। कोई अमीर लोग है, कोई अमीर है जिसकी गाड़ी जा रही है उसको भी रुकना पड़ेगा। तो ये सबके लिए लॉ है। ठीक है। Second, no person can be discriminated against the basis of their religion, race, caste, place of birth, or whether they are male or female. Third, every person has access to all public places, including playground, hotels, shops, and markets. All person can use publicly available wells, roads, bathing ghats,
फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। तो ये जो 4 यहाँ पे ये लिखे हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करना है, क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोविज़न की कौन सी ऐसी प्रोविज़न्स है कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमको दिखाती हैं कि जो इंडिया में इक्वालिटी ज़रूरी है। तो ये सब कुछ तुमको यहाँ से फर्स्ट सेकंड जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो 4 है ये सारे लिखनी है, ठीक है। अब इसके अंदर पहली तो हमको समझ में आ गया कि एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब लोग बराबर हैं। और जैसे कि हम ऐसे भी देखते हैं, इसका एक एग्जांपल मान लो, अगर कभी कभार कोई कोर्ट केस है जहाँ पे एक आदमी बहुत अमीर है, एक आदमी गरीब है, और कोई लॉयर नहीं अफोर्ड कर सकता, तो जो गवर्नमेंट है वो लॉयर प्रोवाइड करती है कि पैसों की वजह से ऐसा ना हो कि वो बोले कि मेरे को वो नहीं, इंसाफ नहीं मिला क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो गवर्नमेंट उसको लॉयर प्रोवाइड करती है। तो उसमें क्या है कि एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर लॉ, जो लॉज बने हैं वो सब लोगों को फॉलो करने हैं, चाहे वो कुछ भी हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे एक डोमेस्टिक वर्कर हो, सबको वो लॉज फॉलो करने हैं। सेकंड क्या है कि हम किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, मतलब हम उन भेदभाव नहीं कर सकते किसी के साथ। डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव, कि ये गोरा है इसको हम काम पे रखेंगे, ये काला है इसको हम काम पे नहीं रखेंगे, या कोई भी चीज़ में उसमें हम भेदभाव नहीं कर सकते कि ये तो इसका रिलीजन ऐसा है हम इसको काम नहीं देंगे, तो उसका रिलीजन ऐसा है हम इसको घर में नहीं रखेंगे, हम इसको कहीं कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेंगी। तो अगर ऐसा कहीं होता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई कॉलेज बोलता है कि तुम्हारा तो रिलीजन, मान लो कोई पर्टिकुलर रिलीजन है, हम तुमको नहीं देंगे, तो वो जो भी अगर किसी बंदे के साथ, तो वो लॉ मतलब केस कर सकता है उस इंस्टीट्यूशन पे। थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू पब्लिक शॉप्स, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस। ऐसा नहीं है कि पार्क बना हुआ है, जो गवर्नमेंट पार्क है, जो भी पब्लिक प्लेस है, अगर वहाँ पे सबका एक्सेस है, ऐसे नहीं है कि तुमने बोला कि हाँ ये पर्टिकुलर की रिलीजन वाले लोग यहाँ नहीं आएंगे, इस पार्क में नहीं आएंगे, हर जगह उनका एक्सेस है, वहीं पे भी जा सकते हैं। फोर्थ क्या है, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड, ठीक है। अनटचेबिलिटी अब नहीं होती, कोई भी अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है वो जेल होएगी उसको। अनटचेबिलिटी बिल्कुल अबॉलिश हो गई है, अबॉलिश यानी एकदम ख़त्म हो चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अनटचेबिलिटी अबॉलिश कर ली। उसके बाद the two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through laws and second through governmental program or schemes to help disadvantaged community। इसका क्या मतलब है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पैराग्राफ मार्क कर लो, ठीक है। पहले तो यहीं तक मार्क करो कि ये जो गवर्नमेंट गारंटी करती है कि हमने ये सब कुछ किया है, गवर्नमेंट ने गारंटी करी कि हाँ अब डिस्क्रिमिनेशन अबॉलिश हो गई है, ये सब कुछ अबॉलिश हो गया, अनटचेबिलिटी सब हो गया, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कैसे होगी? गवर्नमेंट ने बोल दिया, अब उसको कैसे पता लोग कर रहे हैं कि नहीं, तो और लोगों को पता है कि नहीं? कभी कभार लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और कुछ लॉज हैं जो हमारे लिए बने भी हैं, तो वो कैसे गवर्नमेंट बताती है? तो उसमें गवर्नमेंट ने 2 किया हुआ है। सबसे पहले क्या है, उससे तो लॉज बना दिए कि हमने भाई एक लॉ पास कर दिया, अब तो ये लॉ बन चुका है। और दूसरा क्या है, गवर्नमेंट स्कीम या प्रोग्राम निकालती है। जैसे कि अगर हम देखें कॉलेजेस में, तो हम बोलते हैं कि हाँ इतने % सीट्स रिज़र्व हुई हैं, जो SC ST OBCs हैं इतने % विमेन के लिए रिजर्व्ड है। तो वो क्या स्कीम या प्रोग्राम निकल गया फॉर डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़, या फिर हम बोलते हैं माइनॉरिटी, जिनके पास मान लो थोड़े गरीब हैं या पैसे नहीं हैं, डिसएडवांटेज, वो जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए भी कई लोगों ने सेव की होती है कि ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए सीट्स हैं इतने %। तो मतलब हम ऐसा समझते हैं कि वो थोड़ी डिसएडवांटेज है, तो वो माइनॉरिटी है, मे बी उनके पास रिसोर्सेज पूरे नहीं हैं, वो कम्युनिटी के पास, जिस एरिया से वो आते हैं वहाँ में भी पढ़ने की फैसिलिटीज़ है, जो भी फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं मिलती, उसकी वजह से ये स्कीम्स आती हैं। There are several laws in India that protect every person's right to be treated equally. In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of community and individuals who have been treated unequally for several centuries. These schemes are to ensure greater opportunity for people who have not had this in the past. ठीक है, तो स्कीम्स का मेन काम क्या है कि जो उनको अपॉर्चुनिटी पहले नहीं मिलती थी अब वो मिलने लग जाए। अगर मान लो कोई गरीब है, मतलब कोई गरीब, हम जैसे हम बोलते हैं कि जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी हैं, तो मान लो उसमें मैंने बोला कि आउट ऑफ 100 70 से ऊपर वाले मार्क्स वाले बच्चे जो जनरल है वो पास होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, जिनकी भी 40 से ऊपर है, जो कि SC ST बैकग्राउंड है या जो थोड़े OBC बैकग्राउंड है, जो भी बैकग्राउंड है उसकी वो चाहे 40% पे हम पास कर देंगे, कि मे बी उनके पास पैसे नहीं है, बुक्स नहीं है खरीदने को, तो 40% भी जिसके आते हैं 40 से ऊपर मार्क्स, तो हम उसको उसमें पास कर देंगे। तो ये क्यों उन्होंने स्कीम निकाली? ताकि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले कम से कम पढ़ने की कॉलेज में,
ठीक है। इसकी वजह से उन्होंने ऐसे स्कीम निकाली है। वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है और बहुत इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक स्कीम का एग्जांपल दो, मिड डे मील। इसका क्या मतलब है, उन्होंने क्या बोला, जो बच्चे थे हम उनको कैसे, जैसे जो गरीब लोग हैं उनको जब हम कहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, स्कूल भेजो स्कूल भेजो, तो वो कहते हैं हम क्यों स्कूल भेजें, ऐसे हमारे बच्चे, मान लो अगर उनके घर पे तो बच्चे हैं, उन्होंने किसी घर में काम पे लगा दिए, तो वो कहते हैं ऐसे तो महीने में वो पैसे मिलते हैं, तो हमको तो पैसे मिलते हैं, स्कूल जाके क्या करते हैं, वो पढ़ के आ जाते हैं, वापस कुछ नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, मिड डे मील स्कीम निकाली। इसने बोला कि जो लंच है, जो स्कूल में लंच ब्रेक होती है, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। मिड डे मील स्कीम उसको बोलते हैं। ताकि ये क्यों किया, ताकि लोगों को एक तरह से इनकरेजमेंट मिले या फिर थोड़ी मोटिवेशन मिले कि बच्चों को स्कूल भेजना है। उनको ऐसे तो समझ आता नहीं था कि भाई बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ ताकि बाद में वो अच्छे पैसे कमाएं। उनको शॉर्ट टर्म पैसे दिखते थे कि हाँ, अगर अभी बच्चा हुआ है, अगर 10 साल का भी है, 7 साल का भी है, तो अगर किसी के घर में लगा दो, उसके घर में सफाई करता रहे तो भी पैसे आ जाते हैं। वो शॉर्ट टर्म पैसे देखते थे कि भाई उस टाइम पे तो कमा लेता है, 5-6 हज़ार कमा लेते, स्कूल भेज के तो कुछ भी नहीं होता। तो उन्होंने उनको मोटिवेशन दे दी कि कम से कम स्कूल भेजोगे तो बच्चे को एक टाइम का खाना मिल जाएगा फ्री में, ठीक है, उसके हम पैसे नहीं लेंगे। बहुत जगह गवर्नमेंट स्कीम्स में ऐसे भी होता है कि अगर बच्चा स्कूल आता है तो हम पैसे देंगे कि चलो बच्चा स्कूल आया है तो 100 रुपये, 500 रुपये, 500 तो ज़्यादा है, 100 रुपये, 200 रुपये बच्चे को हम देंगे कि स्कूल आ रहा है वो, ठीक है, अटेंडेंस हो रही है, ठीक है। कि सारी जगह स्कूल की नोटबुक्स वगैरह सब फ्री होती हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। तो ये सब स्कीम्स क्यों लगाई हैं, ताकि बच्चे स्कूल आए, उनको कोई बहाना ना मिले कि देखो बच्चों को स्कूल नहीं आ रहे। अब ऐसे मिड डे मील में वो कहते हैं कि चलो बच्चे को कम से कम एक टाइम का प्रॉपर खाना तो मिला। बहुत स्कूल्स में दवाइयाँ मिलती हैं, आयरन टैबलेट्स मिलती हैं बच्चों को। तो ये सब कुछ एक तरह से मोटिवेशन करने के लिए, बच्चों के लिए भी और जो उनके पेरेंट्स हैं उनके लिए भी, ताकि वो स्कूल भेजे बच्चों को। This refers to the program introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch. Cooked खाना देते हैं उनको, lunch देते हैं। Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme, and in 2001 the Supreme Court asked all state government to begin this program in their schools within 6 months. This program has had many positive effects. These include the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending schools. Teachers reported that earlier children would often go home for lunch and then not return to school, but now the midday meal being provided in school, their attendance has improved. Their mothers, who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day, no longer need to do so. This program has also helped reduce caste prejudice because both lower and upper caste children in the school eat this meal together, and in quite a few places Dalit women have been employed to cook the meal. The midday meal program also helps reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because of their empty stomachs. तो ये सब कुछ मिड डे मील में अगर क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का भी, तो भी ये सब कुछ लिखना है। मिड डे मील से क्या हुआ है, क्या स्कीम है, मिड डे मील कहाँ पहले आई थी, तमिलनाडु में आई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सारे स्कूल करें। तो ये सब कुछ, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये सारा लर्न करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हुआ, बहुत चीज़ें हमको मिली। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि स्कूल में अटेंडेंस बच्चों की आनी शुरू होगी, ठीक है, बच्चों की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। बच्चे पहले भूखे आते थे, अब कम से कम लंच तो मिलता है। फिर बच्चे, उनकी मम्मियों को कभी कभार घर आना पड़ता था, कि बच्चे घर आते थे, मम्मी को घर आना पड़ता था काम छोड़ के कि इनको खाना खिलाना है, अब मम्मी को वो नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। बच्चे घर आते थे खाना खाने, तो वापस ही नहीं जाते थे, अब वो नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद क्या है, कहीं बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं जहाँ पे अपर क्लास के बच्चे भी आते हैं, वो सारे इकट्ठे बैठ के खाते हैं, तो एक ऑब्वियसली सेंस ऑफ इक्वालिटी डेवलप होती है, उन्हें पता लगता है कि हम भी इक्वल है, सब लोग इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट मिली, वो भी एम्प्लॉयमेंट पहले तो जनरेट हुए कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, अब खाना बनना है तो ऑब्वियसली लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और ऊपर से दलित वीमेन को एम्प्लॉयमेंट थी। दलित जो हम कहते हैं अनटचेबल बोलते थे, हम बोलते दलित, जो हमने ऊपर पढ़ा है कि अनब्रोकन है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिली, उनके हाथ का बना खाना लोग खाने लग गए। तो एक तरह से इक्वालिटी सेटअप हुई, बच्चे स्कूल आने लग गए, उन्होंने सीखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, अटेंडेंस इम्प्रूव हुई। तो ये सब कुछ मिड डे मील स्कीम से हुआ, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done. While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, there continues to be a big difference in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend.
Even today, there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally. These children are forced into unequal situation in which their dignity is not respected. This is because people refuse to think of them as equal even though the law requires it. ठीक है, अब इस पैराग्राफ में कि भले गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च कर दिया, सब कुछ हो गया है, बट फिर भी हमारी कंट्री में पूरा सिचुएशन जहाँ हम बोलें इक्वालिटी आई है उससे हम बहुत दूर हैं। क्यों? क्योंकि मिड डे मील में स्कूल के चलो बच्चों की इनरोलमेंट हो गई, सब कुछ हो गई, लेकिन स्कूल जो अमीर लोगों का स्कूल है, जो गरीब लोगों का स्कूल है, उनमें फ़र्क तो होता ही है। अमीर स्कूल में वो एक तरह से कह रहे हैं कि टीचिंग फैसिलिटीज़ प्रॉपर हैं, टीचर्स अच्छे हैं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, टीचर्स खुद पढ़े लिखे हैं, ठीक है, मास्टर्स करके आए हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हमने देखा है गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत क्या है, टीचर को खुद नहीं पता होता, टीचर को खुद नहीं आता होता। जो टीचर को नहीं आता वो बच्चों को क्या सिखाएगी? फिर वो बच्चों को भी गलत सिखाती है, वो गलत सीख कर आ जाते हैं। तो ये भी इंडियन स्कूल्स की रियलिटी है कि भले मिड डे मील से बच्चे स्कूल आने लग गए, लेकिन प्रॉपर एजुकेशन तो उनको फिर भी नहीं मिली ना, ठीक है। और बहुत सारे स्कूल में अभी भी दलित चिल्ड्रन को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनको अनटचेबली ट्रीट करते हैं, तो उनसे भी उनकी डिग्निटी अफेक्ट होती है। सो वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ दैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली. Even though persons are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status, and because they are women. It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity that present attitude can change. Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle and one in which individuals as well as various communities in India contribute, and you will read about this in this book. तो हम पहली बात तो क्या कह रहे हैं, एटीट्यूड बहुत धीरे धीरे स्लो होता है। हम अगर अपनी बात भी करें तो हम बोलते हैं कि हाँ हम लोगों को इक्वली ट्रीट करते हैं, हम सब लोगों को इक्वली ट्रीट करते हैं, लेकिन कितने सारे हमारे घरों में, जैसे हम लोग हैं, हमारी कम्युनिटी में कितनी जगह है जहाँ पे अगर मान लो तुम्हारी मेड ने तुमसे पानी मांग लिया तो तुम्हारी मम्मी एक अलग गिलास रख देती है, ये मेड का ही गिलास है, इसी में मेड पानी पिएगी, हम अपने गिलासों में इसी में देंगे। वो भी एक तरह से अनइक्वल उसका है कि वो क्या, वो मेड पानी पी लेगी, धो के रख देगी, ख़त्म होगी बात। नहीं, मेड का अलग ग्लास है, मेड का ये अलग चीज़ है। यहाँ कितनी घरों में तो मेड्स को बोलते हैं ज़मीन पे बैठो, चेयर तक नहीं देते। हमारी जैसी कम्युनिटीज़ में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उसको चेयर तक नहीं देते बैठने को, कि ज़मीन पे बैठ के खाना खाओ या जो भी खाओ, बैठ 2 मिनट पानी पीना तो ज़मीन पे बैठ के पियो। तो ये सब कुछ भी तो अनइक्वालिटी। हम बोलते हैं हम हाँ हमको अकल है, हमको पता है, हम इक्वल ट्रीट करते हैं, कितने घरों में तो ऐसे भी होता है मेड्स के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि ये जब तक मेंटली चेंज नहीं होता, जब तक लोगों को अकल नहीं आती कि हमको अब सबको इक्वली ट्रीट करना है, सबकी अपनी अपनी डिग्निटी है, भले वो कोई भी काम करते हो, सबकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो जब तक वो नहीं होता तब तक इक्वालिटी, जितने भी लॉज बनते रहे, इससे प्रॉपर इक्वालिटी नहीं आ सकती, ठीक है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बाकी यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।